नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट दिस वीक और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और साथ ही लॉ कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। जस्टिस एनवी रमन्ना ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में जस्टिस रमन्ना को शपथ दिलाई। इस मौके पर पीएम मोदी भी मौजूद रहे और सीजेआई के रूप में जस्टिस रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक होगा। 23 अप्रैल को जस्टिस एसए बोबडे के सेवानिवृत्त होने के बाद रमन्ना ने भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। I, Nutalapati Venkatramana, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. सीजेआई जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने न्यायपालिका से विदा ले ली है। उनके सम्मान में सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जस्टिस बोबडे ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में 21 साल तक अपनी सेवाएं दी। बॉम्बे हाई कोर्ट से अपने करियर शुरू करने वाले जस्टिस बोबडे 12 अप्रैल 2013 को पदोन्नति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बने। 18 नवंबर 2019 को वे सीजेआई बने। सीजेआई जस्टिस बोबडे रिटायर हो गए हैं। उनके कार्यकाल के अंतिम दिन में सुप्रीम कोर्ट में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। ये आयोजन पूरी तरह से वर्चुअल रहा। इस कार्यक्रम में अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल, एससीबीए अध्यक्ष विकास सिंह, एससीबीए उपाध्यक्ष प्रदीप राय और बार और बेंच की तरफ से तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि वो खुशी, गुडविल और अच्छी यादों के साथ सुप्रीम कोर्ट छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21 साल तक जज के तौर पर काम करने के बाद अब मैं पद छोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस दौरान मुझे अपने साथी जजों से जो सहयोग मिला वो काबिले तारीफ है। When I came here and when I took oath as Chief Justice, I had not imagined the complexity of the tasks which a Chief Justice has to perform. The judicial side, the administrative side, the management of the courts, sometimes problems of the high courts, dealing with the requirements of the bar, it takes, and other things. It takes time to understand the complexities, but there is no way around them. You have to understand and do your best. एससीबीए के उपाध्यक्ष प्रदीप राय ने भी अपने विचार रखे और जस्टिस बोबडे के कार्यकाल की जमकर तारीफ की। He always believed in Jivesu Karuda Chapi Maitri Tesu Vidyatam. Means he always loved he has always loved for the human being. Justice Bobde, as Supreme Court judge, had total tenure of 2,406 days, and he served 520 days as Chief Justice of India. During his tenure, he heard several key cases and been part of various important and landmark judgments. He was one of the members of 5-judge Constitution Bench
that rendered a unanimous verdict on Ram Janmabhoomi matter. अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश का न्यूनतम कार्यकाल 3 साल होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि लंबे समय तक सुधार किया जा सके। As a person from whom we would be hearing from time to time, and he would keep in touch with us, and I hope that he has a great and future, because when at the age of 65, I think it should really be 75. A person retires at 65. You can't waste the remaining years. We wish you Godspeed and all the best in the future. जस्टिस एस.ए. बोबडे ने 14 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यभार संभाला था। उनके कार्यकाल में कोविड प्रतिबंधों के कारण कोर्ट का काम लगभग सीमित ही रहा। जस्टिस बोबडे का स्थान जस्टिस एन.वी. रमन्ना लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे के अंतिम कार्य दिवस पर उनकी अगुवाई वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोविड-19 संबंधित मुद्दों पर लिए गए स्वतः संज्ञान मामले के खिलाफ वरिष्ठ वकीलों द्वारा की गई आलोचना पर नाराजगी व्यक्त की। पीठ में जस्टिस एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भट्ट भी थे और पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालयों से मामलों को यहां लेने का कोई इरादा नहीं था और इसलिए आलोचना निराधार है। चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि इस अंतिम सुनवाई के दौरान मन में मिला जुला एहसास है। मैं पहले भी बेंच में रह चुका हूं, लेकिन ये भावनाएं इतनी मिली जुली हैं कि मैं कुछ भी साफ तौर पर नहीं कह पा रहा हूं। चीफ जस्टिस बोबडे ने बताया कि वो खुशी, गुडविल और अच्छी यादों के साथ सुप्रीम कोर्ट छोड़ रहे हैं। जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामा सुब्रमण्यन के साथ परंपरा के तौर पर बेंच साझा करते हुए सीजीआई ने ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पढ़े बिना टिप्पणी करने के लिए कुछ वरिष्ठ वकीलों को फटकार लगाई और कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट से मामलों को अपने पास नहीं भेजा है। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे से कहा, आपने हमारे आदेश पढ़े बिना ही हम पर आरोप लगा दिया है। हमने एक शब्द भी नहीं कहा और न ही हाई कोर्ट को रोका है। हमने केंद्र से हाई कोर्ट का रुख करने और उन्हें रिपोर्ट देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड प्रबंधन मामले के लिए कल वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को एम्यूकस क्यूरी नियुक्त किया था। आज हरीश साल्वे ने इस मामले से हटने का अनुरोध किया है। साल्वे ने कहा है कि ये बेहद संवेदनशील मामला है और वो नहीं चाहते कि मामले के फैसले को लेकर ये कहा जाए कि वो सीजीआई को स्कूल या कॉलेज के दिनों से जानते हैं। हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में कोविड संबंधित मामले में न्याय मित्र बनाए जाने पर कुछ वकीलों द्वारा आलोचना किए जाने का जिक्र किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमें भी ये जानकर बहुत तकलीफ हो रही है कि कोविड संबंधित मामले में साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त करने पर कुछ वकील क्या कुछ कह रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने हरीश साल्वे को कोविड-19 पर राष्ट्रीय योजना संबंधित सत्ता संज्ञान के मामले में न्याय मित्र के तौर पर हटने की अनुमति दे दी। वरिष्ठ वकीलों द्वारा सत्ता संज्ञान मामले के खिलाफ दिए गए बयानों का जिक्र करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक द्वेषपूर्ण प्रतियोगिता चल रही है, जो कि देश के लिए आपदा के समय में सबसे आखिरी चीज है। वरिष्ठ वकीलों को संस्था की रक्षा करना चाहिए। न्यायमूर्ति राव ने कहा, हमें लगता है कि संस्थानों को आलोचना से मजबूत किया जाएगा। दवे ने उत्तर दिया। तब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं वास्तव में महसूस करता हूं कि वह एक प्रेम पूर्ण विदाई के हकदार है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के धारणाओं के आधार पर सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुख्य न्यायाधीश को एक अच्छी विदाई मिले, न कि ये दुर्व्यवहार। हम दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इस पर बयान पर आपत्ति करते हुए दवे ने जवाब दिया। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भट्ट की बेंच महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का वितरण मामले की सुनवाई कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट। इटली के मरीन पर हत्या के ट्रायल को रद्द करने की केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एक हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। मछुआरों के परिवारों को मुआवजे के लिए 10 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा नहीं किए जाने पर सुनवाई को स्थगित किया। पिछली सुनवाई में इटालियन मरीन की तरफ से कहा गया था कि हम पैसा जमा कर देंगे। तब कोर्ट ने केंद्र सरकार को मुआवजे की 10 करोड़ की राशि एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने को कहा था। सीजीआई ने कहा था कि मरीन के खिलाफ ट्रायल तब तक रद्द नहीं होगा जब तक मुआवजे की रकम नहीं मिल जाती।
सुप्रीम कोर्ट में इतालवी मरीन मामले में सुनवाई हुई। 2012 में इतालवी मरीन द्वारा 2 भारतीय मछुआरों की हत्या से संबंधित एनरिका लेक्सी मामले में इटली गणतंत्र द्वारा केंद्र सरकार को मुआवजे के रूप में 10 करोड़ रुपए जमा कराना बाकी है। ये जानकारी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक पीठ के सामने इटली ने मुआवजे की रकम जमा करने की बात स्वीकार की थी, लेकिन 10 करोड़ की रकम जमा नहीं होने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई। कोर्ट भारत में 2 इतालवी मरीन के खिलाफ आपराधिक मामलों को बंद करने की मांग करने को लेकर केंद्र द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इटली गणतंत्र को विदेश मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट खाते में 10 करोड़ रुपए के मुआवजे को जमा करने के लिए कहा था और मंत्रालय को इटली से ये राशि प्राप्त करने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने तब कहा था कि वो भारत में 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के लिए 2 इतालवी मछुआरों की हत्या को लेकर भारत में लंबित आपराधिक मामलों को बंद करने पर विचार करेगी। सोमवार को जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सीजीआई बोबडे ने सवाल किया, पैसा कहाँ है? केंद्र के वकील ने जवाब दिया, हम पैसे की प्राप्ति का इंतजार कर रहे हैं। इटली ने पैसे के हस्तांतरण की पहल की है। उन्होंने इस मामले को स्थगित करने की मांग की क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक अन्य पीठ के समक्ष उपस्थित थे। केंद्र सरकार के वकील ने कहा, हम इटली से तेज प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं। पीठ ने मामले को अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया। पिछले साल जुलाई में संयुक्त राष्ट्र के कानून के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज के तहत स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि भारतीय मछुआरों की मौत के लिए भारत इटली से मुआवजे का दावा करने का हकदार है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने ये भी कहा कि भारत के पास मरीन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि उनके पास राजनयिक प्रतिरक्षा थी। उसके बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वो पीसीए के अवार्ड को स्वीकार कर रहा है और मरीन के खिलाफ लंबित मामलों को रद्द करने की मांग कर रहा है। केंद्र द्वारा रिकॉर्ड बयान के अनुसार केरल सरकार ने 2 मृत मछुआरों के परिवारों को 4 करोड़ रुपए और नाव सेंट एंटनी के मालिक को 2 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इटली द्वारा परिवारों को पहले 2.17 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि पीड़ितों के परिवारों की सुनवाई के बिना मामलों को खत्म नहीं किया जाएगा। घटना 15 फरवरी 2012 को केरल तट से लगभग 20.5 समुद्री मील की दूरी पर हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और जिसमें कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के निर्देश दिए थे। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामा सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर अपील में 2 सप्ताह का नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने हालांकि स्पष्ट किया कि यूपी सरकार को महामारी की स्थिति से निपटने के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में उच्च न्यायालय को रिपोर्ट करना है। उत्तर प्रदेश सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 5 शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है और सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो उठाए गए कदमों और आगे उठाए जाने वाले कदमों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। 2 सप्ताह के बाद अगली सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामले के बीच राज्य के 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को यूपी सरकार ने मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। सीजीआई एस ए बोबडे की बेंच ने इस पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। 5 शहरों को न्यायिक आदेश के जरिए लॉकडाउन में डालना सही नहीं है। दरअसल यूपी सरकार की दलील है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। ऐसे में शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्फूर्ति भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया था। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि किसी भी सभ्य समाज में अगर जनस्वास्थ्य प्रणाली चुनौती का सामना कर पाती है और दवा के अभाव में लोग मरते हैं तो इसका मतलब है कि समुचित विकास नहीं हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा एक साथ चलते हैं। शासन के मामलों के शीर्ष में रहने वाले लोगों को वर्तमान अराजक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। ऐसे समय जबकि लोकतंत्र मौजूद है
जिसका अर्थ है लोगों की सरकार, लोगों द्वारा और लोगों के लिए। अपने आदेश में कोर्ट की तरफ से यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए आदेश दिए गए थे। कोर्ट की तरफ से दिया गया यह आदेश मंगलवार रात से लागू होना था। इस दौरान इन शहरों में जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान, होटल, ऑफिस और सार्वजनिक स्थल नहीं खुलने की बात कही गई थी। साथ ही मंदिरों में पूजा और आयोजनों पर भी रोक लगा देने का आदेश दिया गया था। कोर्ट की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आर्थिक संस्थानों, मेडिकल और हेल्थ सर्विस, इंडस्ट्रियल और वैज्ञानिक संस्थानों और जरूरी सेवाओं वाले संस्थानों को छोड़कर सभी चीजें बंद रखने के लिए कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना के गंभीर हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कोविड पर एक राष्ट्रीय योजना बनाकर इसे पेश करने का निर्देश दिया। मामले पर सलाह देने के लिए कोर्ट ने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अलग अलग हाईकोर्ट में सुनवाई होने के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। कोर्ट ने एक सुनवाई में इस तरफ भी इशारा किया, साथ में ये भी कहा कि लॉकडाउन लागू करने की शक्ति न्यायपालिका के पास नहीं होनी चाहिए और ये सरकार की शक्ति है। देश भर में कोरोना के रोज बढ़ते मामले और साथ में दवाओं, ऑक्सीजन के लिए मचे हाहाकार के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लेकर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सत्ता संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर ये पूछा है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए उनकी क्या योजना है। हाई कोर्ट में कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई को लेकर भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो कोरोना से लड़ने के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियों की योजना बताए। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया, चौथा लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने इस दौरान ये भी कहा है कि मौजूदा समय में देश के 6 हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई हो रही है। इसमें दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, कोलकाता और इलाहाबाद हाईकोर्ट शामिल है। चीफ जस्टिस ने इतने हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर कहा कि इससे भ्रम पैदा हो रहा है। एक हाईकोर्ट को लगता है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में प्राथमिकता है, एक को लगता है कि ये उनका अधिकार क्षेत्र है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लॉकडाउन वाले आदेश का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नहीं चाहती कि हाईकोर्ट ऐसा आदेश पारित करे। सीजेआई एस ए बोबडे ने कहा कि हम राज्य सरकारों के पास लॉकडाउन की घोषणा करने की सख्ती रखना चाहते हैं, न्यायपालिका द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से ये पूछा कि क्या वह हाईकोर्ट में कार्रवाई पर रोक लगाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी योजनाओं को हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर सकती है। यदि आपके पास ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एक राष्ट्रीय योजना है तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट इसे देखेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की आपूर्ति और आवश्यक दवाओं के मुद्दे पर सत्ता संज्ञान लिया। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को ऑक्सीजन सप्लाई पर एक राष्ट्रीय योजना बनाकर इसे पेश करने या सूचित करने के लिए कहा। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को ऑक्सीजन की कमी पर सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को मामले की गंभीरता समझने के लिए कहा और साथ ही चेतावनी दी कि अगर निर्देश नहीं माने गए और लोग मरे तो आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने उद्योगों को कोविड-19 आपातकाल के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए भी कहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उन अस्पतालों की लिस्ट मांगी जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। केंद्र ने कहा कि लिस्ट अभी देने के बजाय कुछ देर बाद दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार कुछ समय बाद भी अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार पर मामले को सनसनीखेज बनाने का आरोप लगाया है। ऑक्सीजन को लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि हम सभी अन्य पक्षों को निर्देश देते हैं कि आदेशों का कड़ाई से पालन हो। इस आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा और इससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत की संभावना बनेगी और ऐसे होने पर गंभीर आपराधिक एक्शन लिया जाएगा।
ये अपराध माना जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि हम सभी अन्य पक्षों को निर्देश देते हैं कि वो अपने आदेशों का पालन करें, साथ ही केंद्र टैंकरों के लिए अतिरिक्त संरक्षण मुहैया कराए। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि केंद्र ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए एक अलग कॉरिडोर तैयार करे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हमें कल करीब 80 से 82 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हुआ था और आज हमें एक भी मीट्रिक टन प्राप्त नहीं हुआ। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली सरकार बेवजह इस मामले को सनसनीखेज बनाने में लगी है। इस मामले में संवेदनशील होने की जरूरत है, न ही ट्वीट करके या सोशल मीडिया पर पैनिक फैलाकर। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि हरियाणा से न देकर राउरकेला से ऑक्सीजन क्यों दी जा रही है। बुधवार को दिल्ली के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की तत्काल जरूरत के संबंध में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि कोविड-19 के गंभीर रोगियों का इलाज कर रहे दिल्ली के हॉस्पिटल को किसी भी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराया जाए। हैरानी जताते हुए अदालत ने ये भी कहा कि केंद्र हालत की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहा है। अदालत ने नासिक में ऑक्सीजन से हुई मौत का जिक्र भी किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उद्योग ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कई दिनों तक इंतजार कर सकता है, लेकिन यहाँ मौजूदा स्थिति बहुत नाजुक है और संवेदनशील है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर टाटा कंपनी अपने ऑक्सीजन कोटे को डाइवर्ट कर सकती है तो दूसरे ऐसे क्यों नहीं कर सकते? क्या इंसानियत की कोई जगह नहीं बची है? ये हास्यास्पद है। ब्यूरो रिपोर्ट। देश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर जारी मौतों के बीच में दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन में कोई अधिकारी ऑक्सीजन सप्लाई में अड़चन डाल रहा है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, उसे फांसी पर लटका देंगे। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच की ओर से ये टिप्पणी महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की सांसों पर आए संकट को देखते हुए महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने जल्द से जल्द ऑक्सीजन दिलाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि बताएं कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है और कहा कि हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। बेंच ने कहा कि हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताए ताकि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट से कहा कि जो कुछ भी चल रहा है हम उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे, हालांकि हम हवा से ऑक्सीजन नहीं बना सकते। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि जिम्मेदारी उन पर भी आती है। जो इस दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने को कहा। वकील राहुल मेहरा ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि दिल्ली को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन जल्द किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हम व्यवस्था को क्रम में नहीं रखेंगे तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि हमारे कोटा 480 मीट्रिक टन के बावजूद शुक्रवार को दिल्ली को लगभग 296 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमें 480 मीट्रिक टन आवंटित ऑक्सीजन नहीं मिले तो 24 घंटे में पूरी फंक्शनिंग ठप हो जाएगी। और इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि दिल्ली में 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन कब किया गया। कोर्ट का कहना है कि दिल्ली को ऑक्सीजन की सुचारू और पूर्ण रूप से आवंटित आपूर्ति की कई समस्याओं को हल कर सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकता है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राजधानी के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया था कि वे ऑक्सीजन की जरूरतों के लिए केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारियों से संपर्क करें। केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन सुनिश्चित करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने के बारे में कोर्ट को सूचित किए जाने का बाद ये फैसला आया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गोपनीयता नीति के संबंध में व्हाट्सएप के खिलाफ लगाए गए प्रभुत्व के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया और ये आदेश न्यायमूर्ति नवीन चावला के एकल न्यायाधीश पीठ ने पारित किया है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल न्यायाधीश पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप की चुनौती खारिज की है। दरअसल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति को कथित रूप से प्रतिस्पर्धी विरोधी करार देते हुए जांच का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई भी मेरिट नहीं पाया गया और कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जांच के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। इस मामले में 3 संबंधित पक्षकारों द्वारा तर्क दिया गया। इसमें प्रमुख रूप से व्हाट्सएप के लिए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, फेसबुक के लिए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और सीसीआई के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी पेश हुए। व्हाट्सएप के लिए पेश हुए एडवोकेट साल्वे ने तर्क दिया कि सीसीआई के आदेश में कहा गया है कि नई निजता नीति द्वारा कथित रूप से अत्यधिक डेटा संग्रह करके प्रभावित किया जा रहा है
और ये जांचने की जरूरत है कि क्या अत्यधिक डेटा संग्रह से प्रतिस्पर्धा विरोधी निहितार्थ किसी सीमा के बाहर किसी मुद्दे पर उल्लंघन कर रहा है। एडवोकेट साल्वे ने आगे कहा कि पुरानी नीति में कोई नई चीज जोड़ी नहीं गई है और नई नीति को विशुद्ध रूप से व्यापार और वाणिज्य उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया है ताकि उन्हें एक विशेष तरीके से व्हाट्सएप का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने फेसबुक की ओर से दलील देते हुए कहा कि ये किसी का मामला नहीं कि ये एक संयुक्त नीति है और इसलिए सीसीआई द्वारा फेसबुक के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। फेसबुक ने विभिन्न आधारों पर व्हाट्सएप और खुद के खिलाफ सीसीआई की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि अन्य अदालतों में पहले से ही मामले लंबित हैं और अगर सीसीआई की कार्यवाही को रोक दिया जाता है तो कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी ओर सीसीआई के लिए एएसजी अमन लेखी ने तर्क दिया कि ये मामला निजता का नहीं बल्कि डेटा तक पहुँच का है और इसलिए सीसीआई अपने दायरे में रहकर अपना काम सही से कर रहा है। एएसजी अमन लेखी ने कहा कि नीति के माध्यम से बाजार की स्थिति का दुरुपयोग किया जा सकता है जिसमें अत्यधिक रूप से डेटा संग्रह और डेटा शेयरिंग किया जाएगा। आयोग ने हाईकोर्ट में बताया था कि व्हाट्सएप नई निजता नीति के जरिए निजी डेटा भारी मात्रा में जमा कर सकता है। व्हाट्सएप ने 15 मई तक नीति स्वीकारने की डेडलाइन अपने यूजर्स को दी है। इसके बाद अकाउंट डिलीट करने की धमकी दी है जिसे आयोग ने अपने निर्णय में बेहद आपत्तिजनक व्यवहार बताया। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।